Welcome back to the channel, Jan Brothers in Canada. So this is the most awaited video, right? यहाँ पे हम लोग express entry Canada जो मैंने process follow किया था अपना, right? We will be discussing that and my complete timeline, entire journey. कब मैंने IELTS की तैयारी शुरू करी, how many attempts I gave, right? And then medicals, PCC, everything. क्या क्या गलतियाँ हुई हैं मुझसे, some tricks and some tips, right? So stay tuned. There's a lot. I have done a lot of research in this video and I hope it will help someone. Yeah. So let's move forward. Okay. So let's quickly talk about what all things we'll be discussing here, right? So what are the topics we'll be discussing on it? So of course, the first is entire journey, the complete timeline, year, month, in which month I did IELTS, in which year, in which month I did PCC, documentation, everything. This has each and every detail. Okay. Next, कितना पैसा लगा, right? I'm sure there's a lot of misconception कि लाखों लग जाते हैं, right? So you will get to know कि इसमें मेरे कितने पैसे लगे and ideally कितने लगते हैं इसमें अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो, right? Then क्या क्या documents चाहिए? What all documents you need? Okay. So I have a list of documents which I prepared. So I have tried to explain it in this video as well. And then, after 4 years when I landed in Canada, I realized कुछ चीजें मैंने delay करी, है ना, कुछ गलतियां करी. So which I tried to summarize in this video, which might help or not, but I tried to jot down all the points. So that's it. Let's move forward. I'm sure by now you all know what is the objective of this channel. This is my brother Rahul. So what is this channel about, right? We are Jan family. We recently moved to Canada, and we objective is to just will share all the process we followed. We are just sharing our experience, right? What route we took, study, PR, and all. How we managed to get PR, and trust me, we both didn't didn't I would say consultancy की कोई requirement नहीं है, right? So it's all transparent, right? अभी क्या कर रहे हैं हम? Of course इतना कुछ इस वीडियो में नहीं है, but हाँ, that's what our plan is. अभी हम jobs के अलावा भी क्या करते हैं? Hikes, badminton, table tennis. So of course I'll make some videos slowly and gradually. What mistakes we did in the journey, right? Tips and tricks. So yes, our aim is to just ensure that we pass on all the information, right? Could we miss na ho and all. And just a disclaimer that we are not a licensed immigration consultants. हम बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो भी हमने इतनी रिसर्च करी थी. We just trying to share all our experience so that जो हमने गलतियां करी वो और ना करें या फिर उनका थोड़ा टाइम बच जाए. That's it. Okay, let's move to our first topic, and these are some pictures when I was leaving from Canada. Sorry, when I was leaving from India. So in this section of the video, हम complete timeline discuss करेंगे. When I started. Okay, let's start. The first step which I did was I started preparing for IELTS, and that was 4 years back in October 2018. जब मैंने first mock test दिया था, या मैंने बहुत वीडियोस देखी थी IELTS को लेकर. There are a lot of stuff out in YouTube. I haven't taken any coaching, self preparation थी, and I think um, it's not that difficult. You just have to prepare um, from exam point of view. The first attempt मैंने 3 महीने बाद दिया, which was in December 18, and I failed. Failed in the sense जो आपको CRS स्कोर चाहिए होता है इसके लिए, PR के लिए, so उसमें आपको 778 लाना होता है. So I couldn't get 778, which is 778. I'm just trying to explain. See, 3 section में 7 and listening में 8. Then I joined a new job
and I think I was busy, so I couldn't reattempt in April. I wasn't confident as well. So next attempt मैंने April में दिया, again I flunked. Then finally, after a year of my first attempt, um, December 2019 में मैंने third attempt दिया, I got the golden score. What was that? 778, right? And this was my actual score. So listening में 8.5 out of 9, reading 9 out of 9, and then writing and speaking में 7. So that's what you need, 778. So speaking, writing, and reading में 7 or above, and listening में 8 or above. So that's when you get the golden score, the CLB line 9. अब so नेक्स्ट वाज ECA, एजुकेशनल क्रेडिट असेसमेंट. ये क्या होता है कि आपने जो इंडिया में एजुकेशन करी है, राइट, उसकी कनाडा के इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है या नहीं है. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो यू हैव टू गेट इट सर्टिफाइड कि यहाँ की ग्रेजुएशन कनाडा की ग्रेजुएशन से लिंक्ड है, मास्टर्स से लिंक्ड है या नहीं है. सो मैंने अप्लाई किया था दिसंबर में. So I got my graduation ECA evaluated in a month, right? But मेरा जो post graduation था वो मेरा एक distance learning program था, तो it took 9 months. Of course COVID and all चल रहा था, तो it took me around 9 months to get the results from ICAS. Then जुलाई में finally मेरा ECA result आ गया था MBA finance का, and thankfully I got the masters, जिससे मेरा score 475 तक पहुंच गया था. अब वेट करना था ITA का इनविटेशन टू अप्लाई का, कि मेरा जो स्कोर बन रहा था वो एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ भी उतना ही आ जाए, राइट. सो जुलाई में मेरे पास आ गया था. जुलाई में मैंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी, बट स्कोर उस समय आई थिंक 480, 85, 490 चल रहा था. सो what I did in meanwhile was, जो भी मेरा टाइम चल रहा था उसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत टाइम देते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर्स लेने होते हैं अपनी एम्प्लॉयर्स से. कुछ एम्प्लॉयर्स दे देते हैं, उनका अपना प्रोसेस होता है. कुछ एम्प्लॉयर्स का प्रोसेस ही नहीं होता यार, उनके लिए नया होता है. सो यू माइट हैव टू एक्सप्लेन देम, सेंड एंड बैक एंड फोर्थ ईमेल्स, राइट. सो कभी कभी टाइम लग जाता है. PCC में टाइम लग जाता है, बट PCC की वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की, राइट. सो मैंने कुछ ये सारी चीजें मैंने अगली स्लाइड्स में लिखी हैं, सो आई विल नॉट डिस्कस हियर. सो आई मीन नेट मैंने इस टाइम को, जो IT आने का वेट हो रहा था या ECA आने का वेट हो रहा था, मैंने उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में लगाया था, सो दैट जैसे ही ITA आए मेरे को ज्यादा टाइम ना लगे, राइट. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. I got the ITA on 2nd of September. Thankfully 475 ही कट ऑफ निकली थी जो मेरा स्कोर था. तो I got invitation to apply. 2 तारीख को आया, 4 तारीख की मुझे मेडिकल्स मिल गई. तो मैंने मेडिकल अपॉइंटमेंट ली, लाजपत नगर में थी एक मैक्स की. तो वहाँ से मुझे एक रिसीट मिलती है जो हमें अपलोड करनी होती है. दैट्स इट, मेडिकल्स में इतना ही होता है. So आप देखोगे मैंने 12 सितंबर को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे. So only in 10 days I was able to submit all my documents. तो मेरे को एक AOR मिलता है. जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, फीस पे करते हो, तो आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट मिलता है आपकी एक्सप्रेस एंट्री CIC अकाउंट पे. तो 12 सितंबर 2020 मेरा काम खत्म. अब मुझे और कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब बस वेट हो रहा है. 14 अक्टूबर को जो मैंने मेडिकल सितंबर में करवाए थे उसका रिजल्ट आ गया है कि वो पास हो गए हैं. नॉर्मली मेडिकल्स पास के साथ साथ आपको बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट आती है, जो मेरे केस में वैलिड नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स सबमिट कर दिए थे जब मैंने 2019 में टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई किया था, ठीक है. सो मेरे केस में बायोमेट्रिक्स रिक्वायर्ड नहीं था, तो मेरा कोई एक्शन नहीं था. बस मेरे पास एक चिट्ठी आई थी उसमें कि CIC अकाउंट में कि biometrics are not required because you already have it on your file because of your tourist visa application. But आपके केस में, मतलब किसी के केस में अगर बायोमेट्रिक्स कभी नहीं दिया है तो आपको देना पड़ेगा. अब देखो, अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक, आई गेस 1 year and 3 months कुछ नहीं था. And trust me, it's very frustrating time when you wait and you are scared कि रिजेक्ट ना हो जाए, क्या करें, लाइफ स्टक हो जाती है. आई एग्री, लाइफ स्टक हो जाती है, बट कोविड की वजह से था. आई एम श्योर IRCC अब थोड़ा फास्ट कर रहा होगा, क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बहुत सारे आई गेस प्लान्स
रिलीज करे हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ भी डिप्लॉय करा है, एक्स्ट्रा बजट भी डिप्लॉय किया है. सो होपफुली अब इतना टाइम नहीं लग रहा होगा, बट कोविड टाइम में लगा था, तो 1.5 साल तक कुछ नहीं था. अब 1.5 साल मैंने क्या किया, आई टेल यू इन माय नेक्स्ट स्लाइड, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. ठीक है. सो 29 जनवरी 2022 को मैंने मेडिकल्स दोबारा करवाए. वो क्यों कराए? क्योंकि मेडिकल्स जब आप कराते हो उसकी वैलिडिटी होती है 1 साल की. ठीक है. तो वो एक्सपायर हो जाते हैं. तो मैंने सितंबर में करवाए थे, तो वो सितंबर या अक्टूबर में एक्सपायर हो गए थे. तो मैंने फिर वो दोबारा अपफ्रंट कराए. मतलब नॉर्मली आप अपफ्रंट लोग रेकमेंड नहीं करते हैं, बट आई वॉज रिव्यूइंग, आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, तो मैंने वो टाइम बचाने के लिए अपफ्रंट करा दिए. एंड इन अ मंथ और सो आप देख सकते हो 29 जनवरी को मैंने मेडिकल्स करवाए थे, एंड 23 फरवरी को मेरे वो अप्रूव हो गए थे, पास हो गए थे. आई गॉट अ नोटिफिकेशन माय सीएससी अकाउंट कि वो पास हो गए हैं. नाउ अनदर 1 मंथ, जो पूरे 3 साल का वेट हो रहा था, वो मेल आ गई. एंड आई एम नॉट श्योर, मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है. मेरी कुछ कुछ गुड न्यूज़ कुछ इवेंट्स पे आती हैं. जैसे कभी कभी मेरे बर्थडेज पे, कभी किसी फेस्टिवल पे, कभी एनिवर्सरीज पे मेरे पेरेंट्स की या मेरे भाई की. तो मेरी जो पीपीआर मेल आई थी, विच इज पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, वो छोटी होली के दिन आई थी. सो इट वॉज हैप्पी होली फॉर मी. एंड यस, एवरीवन वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी इन माई फैमिली. उसके बाद का एक प्रोसेस होता है कि आपको अपना पासपोर्ट भेजना होता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, राइट. तो मैंने वो 2 दिन में ही भेज दिया था, क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं. तो मैंने 18-19 को भेज दिया था. तो वो 13 अप्रैल को मेरे पास पासपोर्ट वापस आ गया था. उसके अंदर कनाडा की स्टैंप थी. राइट. देन आई एम अ पीआर नाउ. सो आई गॉट अ कन्फर्मेशन ऑफ पीआर एज वेल, जिसमें कि मतलब एक इट्स लेटर कि यू आर नाउ परमानेंट रेजिडेंट, बट only if you travel within that time, right. so उसमें एक टाइम होता है, एक्सपायरी डेट होती है, जो कि नॉर्मली आपके मेडिकल्स एक्सपायरी की डेट होती है. तो आपको उस पीरियड के अंदर अंदर ट्रैवल करना होता है टू गेट द परमानेंट रेजिडेंट कंफर्म्ड. ओके. क्योंकि वो जो सीओपीआर होता है, कंफर्मेशन ऑफ पीआर डॉक्यूमेंट, वो सिर्फ 1 टाइम ट्रैवल के लिए वैलिड होता है. तो जब आप लैंडिंग करते हो कनाडा में, जो कि मैंने 7 जून को करी थी, क्योंकि मैंने नोटिस पीरियड भी सर्व करना था. तो आप जब लैंडिंग करते हो तो आपसे वो सीओपीआर जो होता है उसको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वो 1 टाइम वैलिड होता है ट्रैवल के लिए. तो फिर वो आपके पीआर कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, जो आपके 2-3 महीने में आपके घर पे आ जाती है, जो भी आप एड्रेस देते हो कनाडा में. एंड देन यू आर परमानेंट रेजिडेंट. ऑन 7 जून मेरे को आईआरसीसी जो भी वहाँ पे ऑफिसर थे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उन्होंने बोल दिया यू आर नाउ अ परमानेंट रेजिडेंट, बट यू कांट ट्रैवल बैक टू इंडिया unless you have a PR card or you apply for another document, PRTD, permanent resident travel document. But अभी required है ही नहीं इतनी जल्दी travel करने की, unless there is any emergency or any situation. So that's all about my journey. I know it took me 4 years, but trust me, it's worth wait. आगे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, you will see it. Okay, let's move forward. Okay, कितना पैसा लगा? आई एम श्योर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा सबके में, क्योंकि आई हैव सीन, जब मैं तैयारी कर रहा था ना, मतलब जब मैं सोच भी रहा था कि मुझे कनाडा जाना है, तो एक मिसकंसेप्शन था माइंड में कि यार 20 लाख लग जाते हैं, 40 लाख लग जाते हैं, कंसल्टेंसी के धक्के खाने पड़ते हैं, फ्रॉड भी हो सकता है, राइट. सो दैट्स रीजन आई फेल्ट कि मुझे ये करना चाहिए, एक स्लाइड डालनी चाहिए कितना पैसा लगा. एंड जस्ट साइड में मैंने कुछ यहाँ की पिक्चर्स लगाई हैं, सो दैट इट माइट मोटिवेट यू कि BC, which is British Columbia, it's very beautiful. So it's Joffrey Lake की फोटो है. Okay, IELTS सबसे पहला स्टेप होता है IELTS. तो एक अटेम्प्ट का उसमें 15,500 लगता है, 15,500. अगर एक ही बारी में क्लियर कर लेते हो तो उतना ही लगेगा, या फिर मल्टीपल टाइम्स करते हो तो मल्टीपल. अगर आप 2 एप्लीकेंट हो तो 2 का लगेगा. सो दैट्स इट, मतलब IELTS का इतना खर्चा होता है. नेक्स्ट ही CCA, जो भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. सो उसमें आपके $250 लगते हैं पर आई वुड से पर ऑर्गेनाइजेशन. अब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको हो सकता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन से सबकी मिल जाए. मेरे केस में क्या था कि वो 2 थी, तो मुझे 2 बार लगा था. आई डिस्कस कि मेरा कितना लगा है. अभी मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, $250 लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली.
and $85 international delivery fees. PCC, Police Clearance Certificate, it takes 500 only जब आप उस पर अप्लाई करते हो. पासपोर्ट तत्काल सेवा, पासपोर्ट सेवा एक वेबसाइट है राइट, PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसमें आप अप्लाई करते हो. एंड नॉर्मली 500 लगने चाहिए, बट कुछ सिटीज में यू माइट हैव टू पे सम एक्स्ट्रा. नॉर्मली 500 लगता है, ठीक है. मेडिकल्स 6,500 से 7,000 लगता है. इट कीप्स चेंजिंग, सो 200-300 ऊपर नीचे हो सकते हैं. मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था, आई रिमेंबर मैंने 6,500 दिए थे. नेक्स्ट टाइम मैंने 6,800 और 900 दिए थे. सो अप्रॉक्सीमेटली 6,500 to 7,000 लगते हैं मेडिकल्स के. नेक्स्ट जो मोटा खर्चा, इट्स एप्लीकेशन फीस $1,365, which includes $850 of processing fees and $515 for write off permanent residence fees. अब ये सिर्फ मैं सिंगल एप्लीकेंट की बात कर रहा हूँ. अगर आपके स्पाउस है तो ये डबल हो जाएगी. एंड इफ यू हैव अ चाइल्ड एज वेल along with you in the application, then $230 per child. Now biometric fees $85 per applicant. So these all dollars are in Canadian dollars, right? पासपोर्ट स्टैंपिंग फीस, इसकी कोई फीस नहीं है, बट अगर आप कोरियर सर्विसेज लेते हो, मीन्स आप नहीं चाहते हो कि आप वीज़ा ऑफिस जाओ, पासपोर्ट सबमिट करो, फिर जब वो आ जाए तो आप दोबारा लेने जाओ, तो वो जो ट्रैवल टाइम बचाना चाहते हो या वो हसल बचाना चाहते हो, तो VFS जो सेंटर है वो आपको एक 2-वे कोरियर या 1-वे कोरियर की सर्विस भी देते हैं. तो कोविड टाइम पे वो मैंडेटरी थी. कोविड टाइम पे वो वीज़ा ऑफिस बंद थे, तो मेरे लगे थे 1,700 रुपये लगे थे. ब्लू डार्ट के थ्रू वो खुद ही घर पे आके लेके गए थे, खुद ही डिलीवर करके गए थे. इसके अलावा एक SMS सर्विस आई वुड रेकमेंड ले लेना, क्योंकि 1 महीने लग जाता है लगभग, तो इट हेल्प्स यू कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि वो कहाँ पहुँचा. उसमें वो हर एक स्टेप पे वो आपको मैसेज आता रहता है कि अभी वो IRCC दिल्ली पहुँच गया है, अभी वो VFS दिल्ली पहुँच गया है, वहाँ से डिस्पैच हो गया है, एंड सो ऑन. फोटो भी लेनी होती है आपको, 150-200 रुपये लगते हैं उसमें, राइट. फ्लाइट टिकट्स अनदर बिग एक्सपेंस. तो मोटा मोटा खर्चा देख रहे हो ना आप, एप्लीकेशन फीस है और उसके बाद फ्लाइट टिकट्स है. अगर आप वेल प्लान्ड बुक करते हो तो आई गेस 50,000-60,000 में हो जाती है. बट अगर आप इमीडिएट बुक करते हो या फिर आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. आई एम श्योर आप मेक माई ट्रिप या अदर वेबसाइट्स पे देख सकते हो ये चीज़. तो 60,000 से 1.5 लाख या 2.5 लाख तक की भी होती है, आई एम श्योर, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, कब की चाहिए. सो इट मे वेरी एज पर योर सिचुएशन. नेक्स्ट, ये कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको कहीं पे नहीं करना है, ये आपके अकाउंट में रहेगी, प्रूफ ऑफ फंड्स. सो IRCC ने आई मीन इट्स गुड फॉर यू ओनली कि जब आप कनाडा जा रहे हो, एक न्यू कंट्री में जा रहे हो, तो आपको कुछ एक फंड्स मेंटेन करके रखने होते हैं, सो दैट जो इनिशियल फेज होता है, क्योंकि इनिशियल फेज में आपको जितना करियर आपका वहाँ स्टेबल था इंडिया में, वो स्टेबल करने में टाइम लग जाएगा, राइट. एंड खर्चा भी आपका डॉलर्स में होगा. तो एज पर IRCC आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप वहाँ जाके परेशान ना हो, या फिर आप गवर्नमेंट के भरोसे ना जाओ कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, राइट, एंड सो ऑन. तो IRCC की ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इतने लोग आ रहे हो तो इतना पैसा आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए, सो दैट यू कैन सर्वाइव दैट पीरियड. तो एक एप्लीकेंट है तो $13,310, 2 एप्लीकेंट है तो इतने, एंड सो ऑन. पूरी लिस्ट है, बट ये आपको किसी को देने नहीं है, आपके अकाउंट में ही रहेंगे. आपको बस एक लेटर बनाना होता है बैंक से कि यू हैव सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट. नाउ मैंने एक टेबल भी बनाया कि आइडली कितनी कॉस्ट लगती है एंड मेरी कितनी कॉस्ट लगी. जैसे आप IELTS में देख सकते हो, नॉर्मली 15,500 लगते हैं, बट मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे तो मेरे 46,500 लगे थे, 46,500. सेम ECA, अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड सो ऑन, तो आपके 20,000 में काम हो जाएगा. बट मेरे केस में क्या था, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ एंड दूसरी थी सिक्किम मणिपाल, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हो पाई थी, तो मुझे 2 ऑर्गेनाइजेशन से करनी थी. अभी आपको पता कैसे चलता है कि अब 1 से होगी 2 से होगी, उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी. आपको ECA वेबसाइट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट्स पे देखना होगा, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैंने बताया है आगे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं.
तो मेरे केस में 40,000 लगे थे। पीसीसी नॉर्मली 500 लगते हैं, मेरे केस में 2500 लगे थे। मेडिकल्स नॉर्मली 7,000 लगते हैं, बट मेरे में डबल लगे थे क्योंकि मेरा वो एक्सपायर हो गया था कोविड की वजह से, तो मेरे डबल लगे थे। IRCC एप्लीकेशन फीस 81,000, जो मैंने ऊपर $13,000 की बात करी है, राइट, $1,300 की बात करी, सॉरी। ठीक है, बायोमेट्रिक्स सेम $85, विच इज 5100 इंडियन रुपीज। पासपोर्ट स्टैंपिंग 1785, फोटो 150 रुपये। फ्लाइट टिकट्स मैंने ऊपर बताया था 60,000 से 150,000 लग सकते हैं, तो मैंने उसका एवरेज लिख दिया कि 90,000 में मिल जाएगी, और मेरे केस में मुझे 92,000 में मिल गई थी। तो टोटल नॉर्मली 2 से 2.5 लाख का खर्चा आता है, मेरे केस में 2,82,000 आए अगर एक एप्लीकेंट है तो। ठीक है, सो नाउ द रीजन ऑफ दिस स्लाइड इज कि एक मिसकंसेप्शन था मेरे भी माइंड में कि यार 20-25 लाख लग जाएंगे, नहीं कनाडा नहीं जाना है, रिस्क भी है, ऊपर से पैसा भी बहुत लग जाएगा। लोगों से सुना था कि 20 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख कंसल्टेंट मांगते, राइट। बट सी दिस इज अ रियलिटी कि खर्चा कितना लगा है, 2,82,000, and I'm moving to a new country, a developed country, right? So this is the reality. Proof of funds again, ये 8 लाख रुपए, and it keeps on changing, ठीक है, बट ये आपकी कॉस्ट नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो पीछे डिस्कस किया है वही डॉक्यूमेंट्स हैं आगे, ठीक है, बट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते समय आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैंने तभी ये पिक्चर लगाई है, इट्स वन ऑफ द हाइक आई डिड, वाटरफॉल था, तो आपको दिमाग अपना ठंडा रखना होगा एंड पेशेंस रखना होगा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते समय। फर्स्ट इज वेरी इजी, आप अगर इंडिया से बाहर जा रहे हो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी कुछ वैलिडिटी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जाम, जो मैंने पीछे मेडिकल्स की बात करी, तो उसकी एक रिसीट मिलती है, वो आपको अपलोड करनी होती है वेब फॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स योर IELTS सर्टिफिकेट, देन योर ECA सर्टिफिकेट्स, राइट। अब मैंने क्या किया था, ECA सर्टिफिकेट्स के साथ डिग्री, ट्रांसक्रिप्शन, मार्कशीट भी ऐड कर दी थी लिस्ट में, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। PCC which is your पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स में ना आपको अगर आप इंडिया में ही हैं तो इंडिया की चाहिए, बट अगर आपने कोई और कंट्री 6 months एंड ओल्ड आपने ट्रैवल किया और आप वहाँ रहे हैं तो आपको उन कंट्री से भी लेना होता है। प्रूफ ऑफ फंड्स लेटर, जो भी पीछे डिस्कस किया था $13,300, तो उसका आपको बैंक से लेटर बनाना होता है, एक फॉर्मेट है प्रॉपर, बना देते हैं बैंक, इट्स नॉट अ टफ टास्क, ठीक है, एक दिन का काम है। फोटो, जब आपका PPR मेल आ जाता है, पासपोर्ट प्रिंटिंग मेल, तब आपको एक वीजा के लिए फोटो, 2 फोटो लेनी होती है, जो आपको जब आप पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए भेजते हो तो आपको 2 फोटो लगा के भेजनी होती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर्स, नॉर्मली IRCC ने बोला सिर्फ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर दे दो, बट टू बी ऑन सेफर साइड आई वुड रेकमेंड कि आप अपने फॉर्म 16, लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स, रिलीविंग लेटर्स, अप्रेजल लेटर्स भी लगा देना टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये क्या है? लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन इज समथिंग कि अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है ना, तो एक्सप्लेन इट इन अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। इज जस्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को इलैबोरेट करते हो एंड आप बस IRCC ऑफिसर को समझाते हो कि ये मेरी प्रोफाइल है, एंड अगर आपको लगता है कुछ डाउट आ सकता है, उसको कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट ना भेजे, विच इज कॉल्ड ADR ना भेजे, उसके लिए आप बस चीजें एक्सप्लेन कर देते हो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। अब everyone might have their own individual situations, scenarios, so this list, जो documents की list है, it might not be valid for everyone, so ये मेरे केस में थी valid, but हो सकता है अगर आप 2 applicants आ रहे हो तो आपको spouse के भी सारे documents लगाने पड़े, right? अगर आपने कहीं travel करा है तो आपको of course वहाँ की भी कुछ documents, PCC भी लेनी पड़ेगी अगर आप 6 महीने से ऊपर रहे थे वहाँ पे, and so on, right? So please make sure you do your own research and you arrange all the appropriate documents as per your scenario. आगे let's move forward. Now some mistakes which I think I did, which if I would have avoided it तो शायद जल्दी हो जाता, so I just tried to jot down and share it with you all. Fireworks, yeah, so Vancouver में ना fireworks हुए थे, बहुत अच्छे थे, तो मैंने उसकी just फोटो लगाई है। Okay, again इसका ना कोई thumb rule नहीं है, but
दैट्स व्हाट आई थिंक एंड आई वुड रेकमेंड कि आपको अपना आइल्स और ईसीए साथ साथ शुरू करना चाहिए. मैंने क्या किया था, पहले आइल्स निकाला फिर ईसीए अप्लाई करा. सो जो मैंने आइल्स एक साल में निकाला ना, अगर मैंने उसी पीरियड में ईसीए डाल दिया होता तो मेरे जो नेक्स्ट 9 मंथ्स थे वो बच जाते. सो आई थिंक आई कुड हैव डन इट बेटर. शायद मैं 9 महीने पहले आ जाता, बट कहते हैं कि जो होता है सही टाइम पे होता है. सो बट जस्ट आई ट्राई टू जॉट डाउन कि आई वुड रेकमेंड कि आप अपना आइल्स और ईसीए साथ साथ स्टार्ट करना, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर ईसीए वंस यू क्लियर आइल्स. नेक्स्ट, अब आपने देखा होगा मैंने आइल्स पहले दिसंबर 18 में दिया, फिर अप्रैल 19 में दिया, फिर दिसंबर 20 में दिया. सो आई थिंक मैंने बहुत गैप दिया था. मे बी बिकॉज आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, खर्चा भी बहुत था, 15,000 का पेपर था. दीज वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से मैंने डिले करा. बट आई थिंक कि 1 महीने से ऊपर गैप नहीं होना चाहिए. नॉर्मली वैसे इतना मुश्किल नहीं है, एक बारी में निकल जाना चाहिए, बट अगेन डिपेंड्स कि आप कितना डेडिकेशनली उसमें प्रिपेयर कर रहे हो. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट आई थिंक 30 days आर इनफ टू प्रिपेयर. अगर आप 2 से 3 घंटे रोज दे पा रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप उतना गैप में दो जितना मैंने दिया है. आप एटलीस्ट 30 days के अंदर अंदर दोबारा दे देना अटेम्प्ट इन केस यू फ्लंक फर्स्ट टाइम. बट आई वुड होप कि आप फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लोगे. नेक्स्ट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एंड ईसीए. क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं. फॉर एन एग्जांपल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट्स, राइट. मेरे केस में क्या था, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो बहुत दिक्कत आई थी. आई हैड टू, आई वुड से कि बहुत चक्कर लगाने पड़े थे वहाँ पे जाकर. कोई उनका प्रोसेस ही नहीं था, उनको समझाना पड़ा. तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम, इट टुक लॉट ऑफ एनर्जी. सो आई वुड रेकमेंड कि आप स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर दो आइल्स की प्रिपरेशन में. जब भी आपने मन बना लिया कि आपको जाना है कनाडा, तो आई वुड रेकमेंड कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप स्टार्ट कर दो. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर भी कुछ टाइम लेते हैं. जैसे मेरे केस में क्या था, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक था, उनका भी कोई प्रोसेस नहीं था. सो आई हैड टू एक्सप्लेन देम एंड सो ऑन, टेक सम अप्रूवल्स. तो कुछ केस में आपको टाइम लग जाता है. नेक्स्ट, कुछ देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, देयर आर लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स जिन्होंने अपने वीलॉग्स बनाए हैं, ठीक है. उनके फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं. आई वुड रेकमेंड कि आप उनको फॉलो करो. मैंने कुछ के नाम लिखे हैं इसमें, बट दीज आर नॉट द ओनली वन, दीज आर द वंस विच आई यूज्ड टू फॉलो. आई वुड रेकमेंड कि आप एटलीस्ट इनको तो फॉलो करो. और भी बहुत हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. क्यों? एक, यू विल बी अपडेटेड, राइट, कि क्या चल रहा है मार्केट में, कनाडा में क्या चल रहा है, जॉब मार्केट कैसी है, क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं यहाँ पे, इमिग्रेशन की कुछ न्यूज़ तो नहीं आई, कट ऑफ क्या चल रही है, राइट. इट विल हेल्प यू टू बी अप टू डेट. सेकेंड, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट. हर स्टेप में बहुत टाइम लग जाता है, 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं. एंड आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. सो इसलिए आपको ये जो वीलॉग्स होते हैं, इट विल हेल्प यू टू कीप मोटिवेटेड. तो trust me, it keeps your morale up कि it's worth waiting for. So I would recommend कि आप उनकी videos देखते रहें. Next is ask questions, right. जो भी Facebook groups हैं, WhatsApp groups हैं, YouTube videos हैं, उन पे comments करो and all. अगर आपको कुछ भी doubt है, there are a lot of people who wants to help you. ठीक है, ये मत सोचो ये सिली क्वेश्चन है, वो क्या बोलेंगे. जस्ट आस्क द क्वेश्चंस, राइट. डू योर ओन रिसर्च, ठीक है. एंड अगर आपको किसी से आंसर मिला है, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन ओनली, क्योंकि वो अपनी बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइट. दे माइट बी रॉन्ग, दे माइट बी राइट ओनली इन देयर सिनेरियो. आपके केस में कुछ और हो, तो वैलिडेट योर आंसर्स फ्रॉम 2 or 3 people, राइट. डू नॉट ब्लाइंड फॉलो एनीवन, बट कीप आस्किंग क्वेश्चंस. ओके. नेक्स्ट, CIC करके एक वेबसाइट है, CIC न्यूज़, ऐसी बहुत वेबसाइट्स हैं. तो आई वुड रेकमेंड कि आप उन चैनल्स को फॉलो करो, न्यूज़ फॉलो करो कि इमिग्रेशन में क्या चल रहा है. जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि NOC कोड चेंज हो गए हैं, राइट. तो यू हैव टू मेक योर चेंजेस इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. तो सिमिलरली ऐसी बहुत न्यूज़ आती हैं, एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज निकलते हैं, कट ऑफ्स निकलती हैं,
PNP ड्रॉज निकलते हैं. So keep yourself up to date, follow those channels. एंड इससे क्या होता है ना कि यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स एज वेल. जैसे पीसीसी की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स की होती है, राइट. अब मेरे केस में क्या था, मैंने जुलाई 2020 में अपना ECA का रिजल्ट आया था एंड उस समय कट ऑफ चल रही थी 480, मेरा स्कोर था 475. तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा 1-2 ड्रॉज में रिजल्ट आ जाएगा, विच मीन्स 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा. एंड आई नो पीसीसी में टाइम लग जाता है, 20 से 1 महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं. तो मैंने जुलाई में अपनी पीसीसी अप्लाई कर दी थी. आई नो इट वॉज अ रिस्क, क्योंकि 6 महीने में वो एक्सपायर भी हो सकती थी और 6 महीने में मेरा नंबर नहीं आया तो मुझे दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी. बट आई टुक दैट रिस्क एंड इट हेल्प मी, क्योंकि मैंने जुलाई में अप्लाई करी थी, वो 1.5 महीने बाद आया था, विच मीन्स सितंबर 7-8 के आसपास आया था, जब मेरा आईटी आ चुका था, राइट. अब सोचो अगर मैंने आईटी आने के बाद अप्लाई किया होता तो मैं 12 सितंबर 2020 में वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पीसीसी भी सबमिट करनी होती है. तो ऑल्दो उसका भी एक सेक्शन है कि अगर आपके वो 60 डेज में नहीं आती है तो आप एटलीस्ट प्रूफ सबमिट कर सकते हो. बट अगेन, इफ यू हैव एन ऑप्शन you can do it, right? So keep a track of those news so that you can make your decisions. Next, again, recommendation, no hard and fast rules. जितना मैंने सुना है, कुछ कंसल्टेंसीज अच्छी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, but PR प्रोसेस के लिए I don't think you need a consultancy. You can do your own research, you can follow a lot of YouTube channels and you can do your own process by your own, right? Process is very transparent. I know it's time taking, but trust me, consultancy भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. I know they have expertise and you might not have that much time which they have, but PR के लिए I won't recommend. Study visa पे जा रहे हो तो ठीक है, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो तो ठीक है, but PR के लिए I won't recommend any consultancy. Next, LOE, which is letter of explanation, make as detailed as possible. Even if you think it's clear, explain it. If you have in 1% doubt, explain it in your letter of explanation. क्योंकि होता क्या है ना, अगर IRCC को कुछ भी डाउट हुआ ऑफिसर को, हो सकता है वो आपको फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भेज दें, which delays your process. तो बेटर है कि आप पहले ही उसे एक्सप्लेन कर दो. नेक्स्ट, आई वुड रिकमेंड, अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, आई नो, गिफ्ट डीड्स एंड ऑल, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जब IELTS की तैयारी शुरू करो, आप प्रूफ ऑफ फंड्स मेंटेन करने स्टार्ट कर दो. लाइक $50,000 a month, सॉरी 50,000 rupees a month आप उसमें सेव करना स्टार्ट कर दो, so that you have enough funds by the time you apply, you submit your file. क्योंकि IRCC का कंडीशन है वैसे कि आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो आपके अकाउंट में 6 months एंड ओल्ड एटलीस्ट होने चाहिए. मतलब इट गिव्स देम, आई वुड से, कंफर्टेबिलिटी की ठीक है, मतलब आप इवन इट हेल्प्स यू यार कि आपके पास वो इनफ मनी आपका ही है, किसी और से नहीं लिया, राइट. सो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने प्रूफ ऑफ फंड्स तभी मेंटेन करना स्टार्ट कर दो जब आपने सोचा है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ या जा रही हूँ. अगेन, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है सबके लिए वैलिडेट ना हो, सो डू योर ओन रिसर्च. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. या that's it for this video. I hope this video might have helped, and if you have any questions, if I confused anyone, please comment. I try to answer all the comments. I try to share my experience. Do share a feedback अगर कुछ भी इस वीडियो में बेटर हो सकता था, या नेक्स्ट वीडियोस के लिए कुछ टॉपिक्स इसमें से आप चाहते हो कि मैं एलैबोरेट करूं, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, यू कैन डू कमेंट. आई ट्राई टू मेक वीडियोस. आई हैव सम टॉपिक्स इन माय माइंड कि आफ्टर मूविंग टू कनाडा बहुत कुछ होता है, सो आई ट्राई टू क्रिएट अ पोल जो मेरे टॉपिक्स माइंड में हैं कि उसमें से पहला कौन सा बनाऊं. So that's it. I wish you everyone all the best, and thank you for watching. If you like this video, please do share it with your friends, family, and do subscribe the channel so that you get the notification once I post any comment, once I create a new video. Thank you.